Students, today we will discuss about respiratory system of man. और जो प्रीवियस टाइम पर हमने रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बारे में बात की थी, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ मैन कि हमारे अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है और विच ऑर्गन्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारे यूज होते हैं. ऑल द ऑर्गन्स इन द एनिमल दैट प्रोवाइड free O2 and help in the removal of carbon dioxide collectively constitute the respiratory system. When the respiratory organs are lungs, it is called pulmonary respiration. In the man, pulmonary respiration is present. The respiration system man and other animals having the pulmonary respiration can be split in two parts: respiratory tract and respiratory organs. ट्रैक्ट बोलते हैं जो पाथ होता है, जो बे होता है, जिस बे से ऑक्सीजन जाती है एंड और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है. बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हम. द पाथ थ्रू विच O2 रीच अप टू द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. इन द मोस्ट कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई. नोज है, नोज में हमारे 2 नेसल कैविटीज होती हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 2 नेसल्स नोस्ट्रिल्स विच आर लाइंड विद हेयर एंड म्यूकस टू फिल्टर द डस्ट एंड ईच स्मॉल पार्टिकल्स. जो इन नेसल कैविटी है इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है. वो हेयर स्ट्रक्चर का, हेयर्स का यूज क्या होता है, वो एयर को फिल्टर करती है. जो जिन डस्ट पार्टिकल है जिसकी म्यूकस लेयर है उस पर चिपक जाते हैं. देन फेरिंग्स. द नोज ओपन इनटू द फेरिंग्स which leads into 2 tubes, larynx and esophagus. larynx को हम क्या कहते हैं, वाइंड पाइप भी कहते हैं, जिससे हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है. एंड देन esophagus through the glottis and gullet respectively. The glottis is guarded by the flap like epiglottis. It does not allow the anything other than air to enter into the larynx. एयर के अलावा ऐसा कोई सा भी एलिमेंट जो है वो उसके अंदर, लैरिंग्स के अंदर एंटर नहीं कर सकता. द लैरिंग्स दैट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स. जो हमारा कंठ होता है ना उसे वॉइस बॉक्स कहते हैं. अगर हम हल्का सा प्रेस करते हैं तो जो हमारी साउंड है, साउंड चेंज हो जाती है. इट इज द अपर स्लाइटली सोलन पार्ट ऑफ ट्रैकिया और बाइंड पाइप. इट इज मोर प्रोमिनेटेड इन मैन एज कंपेयर टू द वुमेन एंड इज कॉल्ड एडमंस एप्पल्स. In the larynx is present in pair vocal cord which has no production of sound. इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. Then trachea. Trachea or bind pipe is a long, narrow, whitish tube. It extends through the neck. It enters the thorax when the divided into the pair branches called primary bronchi. The walls trachea are supported by C-shaped cartilage rings that keep it always distended. The primary bronchi. These are a paratubular structure formed a result of bifurcations of the trachea. These are right and left primary bronchi that enter into the corresponding lungs. अब बात आती है जो हमारे मेन ऑर्गन्स रहता है वो रहते हैं हमारे रेस्पिरेटरी लंग्स. The respiratory organ in the man are a pair of lungs. These are thin-walled, elastic, spongy से रहते हैं, pinkish रहते हैं, triangular, hardly distensible. Lungs occupy most of the thoracic cavity. Each lung includes double-walled pleural sac. In between 2 larynx space called pleural cavity, full of a fluid called pleural fluid. The pleural fluid is secreted by the pleural sacs. It protects the lungs from any kinds of mechanical injuries, lubricants the lungs for free expansion and relaxation. It keeps the lungs moist for proper functioning. मोस्ट कह रहा है चिकनाहट रहती है ताकि प्रॉपर उसके अंदर कोई भी किस तरह का क्या ना हो. अगर उसमें लुब्रिकेशन नहीं रहेगा तो हीट जनरेट हो जाएगी और डैमेज हो सकता है, फ्रैक्शन हो जाता है ना. Each lungs is the conical triangular structure. The upper pointed side called apex and the lower broad side is called base. The left lung is slightly smaller than the right lung. जो right lung रहता है वो हमारा
बड़ा रहता है इन कंपेरिजन टू लेफ्ट सन के। द लेफ्ट लंग्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू लोब्स whereas the right lungs is into three lobes and the help in the furrow. Each primary bronchus after entering into the corresponding lungs. अब लंग्स का काम क्या रहता है कि एयर को फिल्टर करना होता है, देन जो ऑक्सीजन रहेगी वो किस में ट्रांसपोर्ट, जो फिल्टर होने के बाद चली जाती है हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो जाती है। अब बात आती है फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, एक्स्ट्रा रेस्पिरेशन, इंटरनेशनल सेल्फ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या होती है? The movement of fresh air from the outside into the lungs through the respiratory tract and fall air in the upward direction is called breathing. The process of breathing is an apparent mechanical part of transpiration. अब आता है मैकेनिज्म ब्रीथिंग, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, जिसे बोलते हैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को हम अंदर की ओर ऑक्सीजन लेते हैं, देन एक्सहेलेशन जो हम रिलीज करते हैं इन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। देन external respiration, exchange of O2 and CO2 between the inhaled air and blood throughout the surface respiratory organ is called external respiration कहलाता है हमारा। देन अब बात आती है इंटरनल टिश्यू रेस्पिरेशन, exchange of O2 and CO2 between the blood and body tissue is called internal tissue. अब बात आती है सेलुलर रेस्पिरेशन की, द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब क्या होता है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हमारी कार्बोहाइड्रेट है, जो न्यूट्रिशन है, जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होता है, देन एटीपी के रूप में एनर्जी। तो जब हम रेस्पिरेशन होता है तभी ऑक्सीडेशन होता है, देन वी गेट द एनर्जी। अब बात चलती है हमारी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ग्लूकोज 6 कार्बन होता है, 6 इन साइटोप्लाज्म। पायरुविक एसिड, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एथनॉल बन जाता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में इन मसल्स में ये होता है ईस्ट। लैक्टिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड देन वी गेट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसी प्रकार प्लांट्स में भी तो होती है। प्लांट्स में होता है जो हमारे स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होते हैं, उसके थ्रू गैस का क्या रहता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ gases. Then we will start the next topic, transportation. Transportation, पहले ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी होता है एंड देन हमें तो होता ही है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन से हम मतलब कि हमारी बॉडी में जैसे कि एयर का सर्कुलेशन है और न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन होल बॉडी में होता कैसे है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब स्थानांतरण है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। तो उसी प्रकार क्या है कि हमारी बॉडी में भी एक प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन का, हमारी बॉडी में भी होता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारी होल बॉडी में सर्कुलेट कर जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड से तो करता है ट्रांसपोर्टेशन। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोआ, स्पंज, Coelenterate, since every cell of body is in direct contact with surrounding water, there is direct exchange of matter between the cell and water. मतलब कुछ जो रहते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इसमें क्या वाटर कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो उनका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्ट हो जाता है। बट इन हायर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमें, देयर इज नो डायरेक्ट सप्लाई ऑफ द यूजफुल मटेरियल्स एंड नो रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स। और लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या आता है कि सप्लाई भी हो जाती है, जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी डायरेक्ट रिलीज हो जाता है। बट हम हायर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इस तरह का प्रोसेस नहीं होता है। उनके लिए क्या आता है, वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स। सो देयर इज ए नीड ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। Annelida and the first metazoans have a well-developed circulatory system containing blood, so called blood vascular system. उसी प्रकार प्लांट्स में भी होता है, बात रही सर्कुलेटरी सिस्टम की। उसी प्रकार प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में 2 वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। भाई जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट से लेके टिप तक,
देन जो फ्लोएम का वर्क है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जितना भी खाना बनता है उसको ट्रांसफर करना होता है अलग अलग पार्ट्स में, वो काम क्या करता है हमारा फ्लोएम करता है। उसी प्रकार जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ ए मैन इज फॉर्म 3 कंपोनेंट्स, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। हार्ट जो होता है, हार्ट का काम क्या रहता है, पंपिंग का करना। हार्ट का काम पंपिंग होता है। ब्लड कैसा होता है, ब्लड इज ए रेड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये हमने टिश्यू वाले पढ़ा है, कनेक्टिव टिश्यू क्लास 9th में भी। इट इज एन ओपेक समवॉट स्टिकी विस्कस फ्लूइड फ्लोइंग एंड द ब्लड वेसल। इट फॉर्म्स 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। हमारी बॉडी में अबाउट 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। इन ए नॉर्मल एडल्ट पर्सन इट इज स्लाइटली एल्कलाइन। और जो ब्लड की पीएच होती है वो अबाउट 7.4 जो रहती है बेसिक, मतलब कि उसका जो टेस्ट रहता है ब्लड का वो हल्का सा बिटर रहता है, बकबका लगता है। अगर देखो अगर एसिडिक का अगर होगा तो वो लगेगा हल्का सा खट्टा लगेगा हमें। अब बात आती है कंपोजिशन। ह्यूमन ब्लड इज फॉर्म्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पोसल्स। अब ब्लड प्लाज्मा में क्या आएगा हमारा, इट इज ए स्ट्रॉ कलर्ड ब्लड मैट्रिक्स लिक्विड पार्ट। इट इज फ्रॉम 50 to 60% ब्लड इज फॉर्म्ड ऑफ वाटर, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, प्रोटीन्स and other organic compounds like glucose, amino acid, vitamins, यूरिया, यूरिक एसिड, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज। हम बात करेंगे ब्लड कार्पोसल्स में। ब्लड कार्पोसल 3 टाइप से मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेसिड। जिसे हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स को बोलते हैं हम आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिनका कलर क्या रहता है, रेड रहता है। और रेड कलर रहता है हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से। एंड डब्ल्यूबीसी, और इनकी जो नंबर ऑफ आरबीसी है मोर देन डब्ल्यूबीसी, अबाउट 5 मिलियंस पर क्यूबिक ईयर रहती हैं। एंड देन बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की। इसे हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स। दे आर राउंडेड, अमीबेड शेप्ड, न्यूक्लिएटेड। दीज आर लेस देन नंबर आरबीसी एंड about 11,000 10 to 11,000 पर क्यूबिक mm होमलैंड। और जो डब्ल्यूबीसी का कार्य रहता है, देखो जो हमारी आरबीसी का कार्य क्या रहता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करके हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके होल बॉडी में सर्कुलेट करती है। और डब्ल्यूबीसी क्या करती है, टू वर्क अगेंस्ट द डिजीज, वर्क अगेंस्ट द इन्फेक्शन। एंड देन अब हम बात करेंगे ब्लड प्लेटलेट्स की। देखो उसमें रहता है ग्रेन्युलोसाइट्स भी था और एंग्लोसाइट्स। आर 3 टाइप, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स। एंग्लोसाइट्स के 2 टाइप्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या रहती हैं, हमारी T4 T7 जो हमारी जो बनाती हैं इम्यूनिटी पावर, लिम्फोसाइट्स जो रहती हैं T4 T7। एंड देन हम बात करेंगे ब्लड प्लेटलेट्स। दीज आर द स्मॉलेस्ट 2 to 3 mm ओवल शेप्ड एंड ये भी लैक्स में पाई जाती हैं, कलरलेस, नॉन न्यूक्लिएटेड, साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट, स्पेशल फॉर्म, बोन मैरो। ईच इज द मास बेसोफिलिक ग्रेन्यूल सेंटर गिविंग द अपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियस। अब बात आती है हमारे ब्लड का क्या फंक्शन है। डेंगू में हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती है ना, वर्क ऑफ ब्लड फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ठीक। It helps maintain the temperature. It helps the temperature regulation. Bicarbonate, protein, food, plasma. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, मिनरल्स का भी करते हैं। अब देन फंक्शन ऑफ आरबीसी, वो मैंने बताया था आपको अभी। हीमोग्लोबिन क्या आते हैं, ऑक्सीजन को सर्कुलेट करती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। और सर्कुलेट करते हैं होल बॉडी में। ह्यूमन ट्रांसपोर्ट 23 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज एंड लंग्स
कार्मिनो हीमोग्लोबिन। अब बात आती है फंक्शन ऑफ WBC, न्यूट्रोफिल, सोल्डर, गार्डन एडिस। ये क्या करते हैं, एक हेपरिन भी पाया जाता है जो हमारे ब्लड को जमने से, वेन्स में जमने से रोकता है। बट जो हमारे WBC का मेन वर्क है टू वर्क अगेंस्ट द डिजीज, मतलब इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। एट इंजरी these release the enzyme thromboplastin which cause the coagulation of blood clot formation, prevent the excessive bleeding। अब क्या करता है कि प्लेटलेट में क्या होता है कि अगर हमें एक चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड निकलने लगता है, तो जो हमारा ये एंजाइम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये क्या करता है, ब्लड जम के ब्लड को थक्का बना देता है और हमारा ब्लड एक्सेसिव रिलीज नहीं होता। अगर एक्सेसिव रिलीज होता है हमारी डेथ भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। आर्टरीज रहती हैं, वेन्स रहती हैं एंड कैपिलरीज रहती हैं। इनका वर्क क्या रहता है, जो हमारा प्योर और इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके होल बॉडी में सर्कुलेट करना रहता है। एंड ये वर्क क्या करते हैं, हार्ट से ब्लड देंगे और हार्ट में क्या रहते हैं 4 चैम्बर्स रहेंगे। हार्ट में